Hello everyone, myself Kushali Kathiria. In this video, we discuss a new chapter. Okay, in uh, in this chapter, we discuss about the representing knowledge using rules. Okay, in previous videos or previous lecture, we discuss knowledge representation issues. Okay, so this one is a continuous form of third chapter. Okay, जो आपका थर्ड चैप्टर था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इश्यूज ओके उसका जो कोई भी कंटिन्यूएशन है उसका जो इशू है उसको रिसॉल्व करने के लिए ये वाला चैप्टर है दिस वन इज द फिफ्थ नंबर चैप्टर रिप्रेजेंटिंग नॉलेज यूजिंग rules. Okay, in this chapter we discuss a procedure versus declarative knowledge. Also we will discuss about the logical programming. Okay, how to program for the AI. Okay, जो आपका prolog language है उसको कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो वाला कंसेप्ट है इसमें यूज होगा और एक जो है वो फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड रीजनिंग ओके वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फॉरवर्ड बैकवर्ड चेनिंग ओके सेम कंसेप्ट है फॉरवर्ड बैकवर्ड रीजनिंग का ओके सो दिस वन इज द repeat topic and these both are a new topic for your fifth number chapter. Okay, so let's start. Representation of knowledge using rule. Okay, most probably knowledge can be considered to be presented as a generally two levels. Okay, two levels में knowledge को हम represent करते हैं. First one is the knowledge level, second one is the symbol level. Okay, what is the knowledge level and what is the symbol level? Knowledge level, it means this level describe the facts, where symbol level is deal with using the symbol for representing the object which can be manipulated in programs. Okay, जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कहाँ क्या यूज होता है सिंबल लेवल यूज होता है पर जबकि हमारा फैक्ट है नॉलेज लेवल को रिप्रेजेंट करने में किसका यूज होता है फैक्ट का यूज होता है फैक्ट इट मीन्स जो हमारा सेंटेंस है उसको हम पहले में कन्वर्ट करते हैं ना प्रेडिकेट में वो वाला ओके so knowledge level and symbol level. Knowledge level describe the facts where symbol level describe the symbol for representing particular ऑब्जेक्ट ओके विच कैन बी मैनिपुलेट इन प्रोग्राम जो प्रोग्राम में यूज होता है मैनिपुलेट होता है ऐड होता है वो वाले सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल लेवल यूज होता है ठीक है बट इन प्रीवियस chapters okay in our third chapter we have already discussed knowledge representation technique okay knowledge can be represented using following rule knowledge representation technique we have already discussed about the knowledge representation technique or knowledge representation approaches of knowledge representation okay we have discussed about the four approaches logical representation semantic network representation frame representation and production rule representation okay logical representation can be divided into further four types first one is the propositional second one is the FOL it means predicate logic third one is the production rule and fourth one is the fuzzy logic or higher order logic okay but in first two methods propositional method and FOL we have discussed in previous chapters or previous video okay so now we know that how to represent the knowledge using this kind of the technique so we know how to represent a knowledge using logical representation how to represent our knowledge using network semantic network okay how to represent frame okay how to represent our knowledge using production rule we have already discussed in our previous video जो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हो ठीक है सो यहाँ पर मैं नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करती हूँ ठीक है तो ये वाली जो टेक्निक है ऑलरेडी हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर ली है तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक के लिए करती हूँ ठीक है सो फर्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेटिव वर्सेस प्रोसीड्यूर नॉलेज ओके डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है और प्रोसीड्यूर नॉलेज क्या है उसका दोनों का डिफरेंस क्या है वो हमें डिस्कस करना है ओके तो व्हाट इज अ डिक्लेरेटिव इट मीन्स आपको नाम से ही आइडिया आ जाएगा डिक्लेरेटिव इट मीन्स डिक्लेरेशन ओके डिस्क्राइब करना है ओके
This declarative knowledge is most probably fact based knowledge. This one is the fact based knowledge. Okay, जो हमारा knowledge representation है, knowledge level है, वो किसके ऊपर से रिप्रेजेंट करता है, फैक्ट के ऊपर से. तो हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज है वो भी फैक्ट बेस्ड नॉलेज रिप्रेजेंट करता है. दिस इज अ नेचर इज अ स्टेटिक. ओके, डिक्लेरेटिव नॉलेज यूज अ स्टेटिक nature. Okay, that means some things are fixed. Okay, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. लाइक दैट कि हमारे पास एक एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल इज दैट सन राइजेस इन ईस्ट. ओके, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो फैक्ट है, उसको हम बदल नहीं सकते. वो हमारे पास एक फैक्ट है, वो हमारे पास कोई एक हिंट है. ओके, नॉलेज है हमारे पास कि सन है वो ईस्ट में क्या होता है, राइज होता है. ठीक है, सेम टू सेम आपके पास जो कोई भी फिक्स हो, नेचर में फिक्स हो, स्टेटिक हो, उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं declarative knowledge. Okay, second one is the procedure knowledge. Okay, what is the procedure knowledge? Procedure knowledge is a how to perform. Okay, procedure knowledge is a knowledge to how to perform, knowledge how to operate. Okay, उसको कैसे perform करते हैं, कैसे operate करते हैं, उस procedure को use करके. ठीक है, this one is the procedure knowledge. Procedure it means procedure. Okay, आपको नाम से ही पता चलेगा कि प्रोसीजर और प्रोसीजर नॉलेज इट मीन्स प्रोसीजर, प्रोसेस क्या है उसका, हाउ टू परफॉर्म एंड हाउ टू ऑपरेट. आपको कुछ आइडेंटिफाई करना है, आपको कुछ बनाना है, आपको कुछ कोई क्वेश्चन है, उसको उसके पास पहुंचने के लिए कौन कौन से वे है, वो आपके पास क्या है, उस नॉलेज उस वे को आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, तो वो क्या है, वो है प्रोसीड्यूर नॉलेज. इट मीन्स सपोज के हमारा एग्जांपल है हाउ टू मेक अ टी. ओके, आपको एक टी बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो आपको चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर, अदरक चाहिए. ठीक है, तो आपको वो परफॉर्म कैसे करना है वो पता है, तो आपको कैसे चाय बनेगी वो आपको क्या होगा, पता होगा. इट मीन्स आपके पास नॉलेज होना जरूरी है. ठीक है, आपको वो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए नॉलेज होना जरूरी है. दैट मीन्स कि वो स्टेटिक नहीं है. ओके, वो समय के साथ साथ क्या होगी, चेंज होती रहेगी, जबकि डिक्लेरेटिव नॉलेज स्टेटिक है. ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज के कोई स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है. ठीक है, वो क्या होगा, एनरोलमेंट नंबर ये वाला है, उसका एनरोलमेंट नंबर है, और स्टूडेंट का कोई XYZ है. ओके, नेम XYZ है, और स्टूडेंट के CGPA है 8.9 अंटिल 6 सेमेस्टर. ओके, 8 सेमेस्टर तक आपके जो CGPA है वो क्या होता है, चेंज होता है. इट मीन्स अगर आपका CPI और SPI है वो चेंज होगा, तो आपका ऑब्वियसली CGPA है वो अंटिल उस सेमेस्टर तक का अपडेट होगा. ओके, सो हियर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा डिक्लेरेटिव नॉलेज है और कौन सा प्रोसीड्यूर नॉलेज है. सपोज के डिक्लेरेटिव, व्हाट इज अ डिक्लेरेटिव नॉलेज? डिक्लेरेटिव नॉलेज इट मीन्स इट इज अ स्टैटिक इन नेचर. ओके, तो सपोज के एनरोलमेंट नंबर आपका कभी भी चेंज नहीं होने वाला है. एक बार आपको अलोकेट हो गया है, आपका रोल नंबर आपको असाइन हो गया है, दैट मीन्स इट इज अ स्टैटिक थिंग्स. ओके, आपका नंबर जो होगा वो कोई दूसरे बच्चे का नहीं होगा, कोई दूसरे स्टूडेंट का नहीं होगा. दैट मीन्स आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, डिक्लेरेटिव नॉलेज. एज वेल एज स्टूडेंट नेम XYZ. ओके, आपका नाम कहीं पर भी कोई एक जगह पर आपने कर दिया है फिक्स. ओके, आपका बॉर्न हुआ है और आपका नाम कोई फिक्स कर दिया है, तो आपका क्या होगा, नाम स्टेटिक हो जाएगा. आप उसी नाम से जाने पहचाने जाओगे, इंट्रोड्यूस उसी नाम से होगा. तो आपका नाम और आपका नंबर वो क्या है, दोनों स्टेटिक. तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस वन इज द डिक्लेरेटिव नॉलेज. बट स्टूडेंट के CGPA है वो 8 सेमेस्टर तक क्या हो गए, चेंजेस हो गए. बट हमारे पास ये वाला सेमेस्टर, ये वाला CGPA वो कौन से सेमेस्टर तक का है, 6 सेमेस्टर तक का. तो हम कह सकते हैं 8 सेमेस्टर तक ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो नॉलेज है वो क्या होगा, प्रोसीजर नॉलेज. क्यों, क्योंकि अभी भी उसमें चेंज आएगा. ठीक है, जो थिंग्स हमारी स्टेटिक है वो डिक्लेरेटिव नॉलेज, जो थिंग्स में हम चेंज कर सकते हैं, जो थिंग को पहुंचने के लिए उसके मल्टीपल वे हो गए. ओके, उसमें कोई चेंजेस आएगा. ओके, ए वन स्टेप बाय स्टेप, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, प्रोसीजर नॉलेज. so this one is the difference between declarative knowledge and procedure knowledge. Okay, thank you.